اب آپ کو بتائیں کہ پرائیویٹ کلینک اور اسپتالوں والے ہوشیار رہیں۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے کوئی بھی اہلکار آئے تو پہلے شناخت کریں۔ شناخت کے لیے اہلکاروں کا کارڈ چیک کریں اور سکین کریں۔ شہر میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے جعلی اہلکاروں کا گروہ سرگرم ہے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے نام پر بھتہ وصولی کا بھی بڑا انکشاف ہوا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں، ابراہیم رند ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا ابراہیم اس انکشاف کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، بالکل یہ بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے کچھ سابقہ ملازمین اور جو کچھ نامعلوم افراد مل کر مختلف کراچی سمیت سندھ بھر کے اضلاع میں جا کر وہاں پہ کلینکس اور اسپتالوں میں جا کر وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے نمائندے ہیں، آپ کی یہ پوری ڈاکومنٹ نہیں ہے، آپ کے ڈاکٹر کے پورے ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ صفائی نہیں ہے، یہ مسئلے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو سیل کیا جا رہا ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ سیل کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے ان کے ساتھ بارگیننگ شروع ہو جاتی ہے اور مبینہ طور پر بھتہ وصول کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے بھتہ وصول کرنے کے جو ہے وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی انتظامیہ کو بھی وہاں پہ کچھ ثبوت ملے ہیں۔ اس حوالے سے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی او ڈاکٹر احسن قوی صدیقی نے اپنا واضح بیان دیا ہے، واضح کہا ہے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی کوئی بھی ٹیم یا کوئی بھی جو کمشنر ہیں یا اس کے جو ٹیم میں شامل ہیں سندھ والے اور اینٹی کوئیکری والے، وہ کسی طرح بھی بھتہ وصولی یا رشوت نہیں لیتے۔ اگر کسی کو جرمانہ کرتے ہیں یا کسی کا لائسنس کی فیس ہوتی ہے یا دیگر مد میں کوئی فیس ہوتی ہے تو اس کا پراپر چلان ہوتا ہے، لیکن جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے نام پر مبینہ طور پر بھتہ وصول کیا جا رہا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تمام کلینکس اور اسپتال اور جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ ان بھتہ خوروں سے ہوشیار رہیں، اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے تمام ملازمین جو ہے ان کے پاس ایک مخصوص کارڈ ہوتا ہے جس کے اوپر بار کوڈ بھی لگا ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کے نمائندے آتے ہیں تو ان کا کارڈ چیک کیا جائے، اس کو اسکین کیا جائے۔ اگر وہ ان کے ہیلتھ کمیشن کے ملازمین ہوں گے تو اسکین میں ان کا واضح طور پہ ڈیٹا آ جائے گا، اگر اسکین نہیں ہوگا تو وہ جعلی ہوں گے۔ اور مبینہ طور پر پولیس کے بھی انکشاف ہوگا کہ پولیس بھی ان جعلی جو ہے بھتہ خوروں کے ساتھ مل کر مختلف اسپتالوں اور کلینکس پر جاتے ہیں، پولیس اہلکار بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے واضح بیان آیا کہ کوئی بھی اس طرح کا ڈاکٹر یا کلینک یا اسپتال کی طرف کوئی بھی آئے تو اس کا پہلے جو تحقیقات مکمل طور پر کرائی جائے، کیونکہ ان کو پاس بھی اب شکایت آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہیلتھ کمیشن کے مختلف افسران کے نام پر مبینہ طور پر رشوت لینے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ان کو رشوت بھی دے رہے ہیں، لیکن جنہوں نے رشوت دی ہے متاثرین ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے کہ ان کی مزید کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ ان کو بعد میں کوئی ان کو دشمنی کر لے یا کوئی اور نقصان پہنچائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ہیلتھ کمیشن کے اعلیٰ افسران سے جو ہے وہ رابطے کیے اور ان کو بتایا کہ اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے واضح طور پر بیان دیا کہ اس حوالے سے جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ کسی طرح بھی پیسے وصول نہیں کرتا، کوئی بھی ہوتا ہے تو چلان جمع کراتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تمام لوگ جو الرٹ ہو جائیں۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی ای او ڈاکٹر احسن قوی صدیقی نے خصوصی طور پر سٹی 21 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا جو ہے بھتہ خوروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی افراد اس لین دین میں اگر ملوث ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے، اور ہیلتھ کمیشن اس حوالے سے جو اپنے بھی کچھ روز کے بعد احکامات واضح طور پر جاری کرے گا۔ ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ کچھ جو ہے سابقہ ملازمین اور کچھ نامعلوم افراد جو اس طرح کے جو ہے وہ بھتہ خوری میں شامل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو مستند ڈاکٹر ہیں وہ بھی شدید پریشان ہو رہے ہیں کہ اس حوالے سے ایسا کیا ہو گیا کہ وہاں پہ ان کے اسپتالوں پہ چکر لگا رہے ہیں۔ تو یہ بھتہ خور جو ہے مختلف کراچی سمیت سندھ بھر کے مختلف اضلاع میں جا کر وہاں پر اپنا کارڈ بھی دکھاتے ہیں، ہیلتھ کمیشن کا اس کے اوپر مونوگرام بھی ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے اس میں متعلقہ افسران کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، پولیس اہلکاروں کو بھی لے کر جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ایسا کوئی بھی نمائندہ آئے یا کوئی بھی آئے تو فوری طور پہ ہیلتھ کمیشن سے بھی رابطہ کریں، جبکہ اس کے علاوہ ان کو پورا مکمل ان کا ڈیٹا بھی حاصل کریں، جبکہ اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو فوری ہیلتھ کمیشن سے رابطہ کریں، کیونکہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ ڈاکٹروں کو بھی تحفظ دینے کے لیے موجود ہے اور اسپتالوں کی۔ ابراہیم اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اب تک کتنے کلینک سے بھتہ وصول کیا جا چکا ہے؟ کیا کوئی متاثرہ کلینک کا مالک سامنے آیا ہے اب تک؟ جی، کلینک کے کوئی بھی مالکان جو وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں، ان کو اپنا خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو ہے ان کے خلاف ہو جائے، کیونکہ انہوں نے وہ متاثرین ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے مختلف افسران سے رابطہ کیا ہے کہ آیا یہ افسران آپ کے ہیں یا نہیں ہیں، اور دوسرا کہ ان کے ناموں پہ یہ بھتہ وصولی کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ہیلتھ کمیشن کے سی او نے آج واضح طور پر یہ اپنا بتایا ہے انہوں نے کہ ایسا کوئی بھی ایسا نمائندہ نہیں ہے جو جا کے ان سے بھتہ لے یا ان سے کیش لے، کیونکہ ہیلتھ کمیشن کا یہ قانون اور اس میں بھی واضح ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر جرمانہ ہوتا ہے یا ان کو لائسنس کی کوئی فیس ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ
सिंध हेल्थ केयर कमीशन के लेटर पैड पे जो एक वो चालान होता है और वो जमा कराया जाता है बैंक में, और उसकी एक रसीद जो एक कॉपी जो होती है बैंक में होती है, दूसरी कॉपी उस शख्स के पास होती है, तीसरी हेल्थ कमीशन के पास होती है। तो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन जो भी अफराद जा रहे हैं उनका सिंध हेल्थ केयर कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हेल्थ कमीशन में ये जराये ने ये बताया कि 8 से 10 अफराद ने ये शिकायत दर्ज कराई है। अच्छा इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि भत्ता वसूली की ये कार्रवाइयाँ ज्यादातर किन इलाकों में सामने आ रही हैं? देखिए, ये जो है छठा, नौशहरा फिरोज और खासतौर पर सुरजानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और मुख्तलिफ जो केमाड़ी के कुछ इलाके हैं वहाँ पर ये सामने आई है कि इसमें हेल्थ कमीशन के कुछ साबिका जो अफसरान है उनको हेल्थ कमीशन का पूरा तरीकाकार मालूम हो गया था कि किस तरह जाती है टीम, किस तरह उनसे पूछा जाता है, सवालात क्या होते हैं, किस तरह उनको ब्लैक मेल किया जाता है। और उनके पास क्योंकि कार्डों का पूरा मोनोग्राम, पूरी डिटेल उनके पास वाजे है। इनका जो पंफलेट है हेल्थ कमीशन के वो उनके पास मौजूद होते हैं। एक सफेद गाड़ी जाती है, उसके साथ साथ जो पुलिस एहलकारों को इलाके के साथ लिया जाता है और वहाँ पे जाकर उनको परेशान किया जाता है। जब वहाँ के पुलिस क्लिनिक के मालकान या वहाँ के जो डॉक्टर थे जब देखते हैं कि पुलिस एहलकार भी आए हुए हैं और हेल्थ कमीशन के अफसरान भी आए हुए हैं तो वो वैसे ही खौफजदा हो जाते हैं और वहाँ पे बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। जबकि हेल्थ कमीशन के सीईओ का कहना है कि इस तरह का कोई हेल्थ कमीशन के ये प्रोटोकॉल ही नहीं है कि जाके उनको वाज़ेह तौर पर इस तरह का उनको ब्लैकमेल किया जाए या उनको परेशान किया जाए। उनका बिल्कुल ऐसा कोई वो नहीं है। जाते हैं, अगर किसी को जाना भी होता है तो तरीके से ऑफिस में बैठ के जाके उनसे पूछा जाता है कि आप आपका हेल्थ अस्पताल जो तिब्बी मरकज है। अच्छा इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि अब तक क्या किसी जाली एहलकार को गिरफ्तार किया गया है, और अगर किया गया है तो उनसे क्या कोई मालूमात हासिल हो सकी हैं? जी, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन सिंध हेल्थ केयर कमीशन के सीईओ का कहना है कि वो शायद कुछ दिन के बाद उनके जिन दिन की शिकायत आ रही है उनको हो सकता है तो फिलहाल तहकीकात कर रहे हैं कि हो सकता है उनकी शिकायत ठीक ना हो, जिनका नाम लिया जा रहा है उनके न वो वाले जो साबिका मुलाजमी हो सकता है वो ना हो। लेकिन ज्यादातर उनको इत्तला मिली है कि वही लोग गए हुए, लेकिन उनके पास 3 से 4 नाम है, लेकिन वो अभी सामने नहीं ला रहे कि शायद वो ना हो। लेकिन ये जो है वो ये इंकशाफ लाजमी हुआ है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन के नाम पर ये भत्ताखोरी शुरू कर दी गई है कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ इजला में। और बड़ी बात यह है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन के एक चीज ये भी वाज़ेह की है कि वो जो है वो अपनी टीमों को भी तब्दील करेंगे, जो कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई है, जिसमें लाइसेंस की टीम भी जाके मुख्तलिफ तरबी मराकज़ को चेक करती है और इसी हवाले से एंटी क्वेकरी की टीम भी जाती है। तो इस हवाले से सिंध हेल्थ केयर कमीशन के सीईओ उन टीमों को भी तब्दील करेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई इसका नुमाइंदा भी शामिल हो, लेकिन ऐसा शामिल अभी कोई नहीं है। जितनी भी शिकायत आई है वो सब साबिका की आई है कि ये लोग आ रहे हैं हमारे पास। इस हवाले से तो बाकायदा जब तक कोई तहकीकात नहीं की जाएगी अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इब्राहिम ब्रिंथ हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस का मजहर नामी मुबैना मुलजिम के वालिद से 6 लाख रुपए लेने का ये मामला है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन शुएब मेमन का सिटी 21 न्यूज़ की खबर पर एक्शन सामने आया है। एएसआई साजिद के खिलाफ इंक्वायरी करने का हुक्म जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस का मजहर नामी मुबैना मुलजिम के वालिद से 6 लाख रुपए लेने का मामला एसएसपी इन्वेस्टिगेशन शुएब मेमन का सिटी 21 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। इसी पर तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, सुबह हमने खबर नशर की थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एएसआई साजिद ने 2 मुबैना प्राइवेट एहलकारों के साथ मिलकर एक मुबैना मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार 21 दिसंबर को किया गया, जबकि उसको 24 दिसंबर को जो है वो ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में जो है वो शो किया गया। तमाम इस दौरानिए में जो मुबैना 2 प्राइवेट अफराद हैं और जो एएसआई हैं साजिद जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में जो है वो तैनात हैं, उनकी जानिब से मुबैना मुलजिम के वालिद को जो है वो फोन किया गया, उनसे पैसे का मुतालबा किया गया। 25 लाख रुपए का मुतालबा किया गया था। तमाम 6 लाख रुपए में बात जो है वो तय पाई थी और उनकी जानिब से 6 लाख रुपए मुबैना मुलजिम मजहर के वालिद से लिए गए थे। तमाम इस हवाले से हमने तमाम तर तफसीलात जो है वो आज सुबह नशर की थी। तमाम एसएसपी इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो शुएब मेमन है उनकी जानिब से वाकई का नोटिस ले लिया गया है। एएसआई साजिद के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। तमाम
इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऐसा ही साजिश है वो सस्पेंड रखा जाएगा उनको, और अगर उनकी ये चीज साबित हो गई कि उन्होंने पैसे लिए हैं तो उनके ऊपर महकमा जाती कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम जो दो प्राइवेट लड़के हैं जिसके अंदर एक का नाम बताया जा रहा है जिसका नाम शोएब उर्फ शोभी है और दूसरे का नाम चलीस है, इनका जो है वो SIU से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कहना है SSP SIU का, और इन दोनों अफराद के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया गया है। तमाम खबर इसके अंदर हमारी जो है वो हमने जो नशर की थी उसके पर एक बड़ा एक्शन जो है वो SSP SIU शोएब मेमन की जानिब से सामने आया है। जी, बड़ा एक्शन सामने आया है। सलमान सलीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका सलमान। और नाज़रीन, पीक आवर्स में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहर की मुख्तलिफ छोटी बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्तगी का शिकार है। तफसीलात नमरा रियासत से। बिल्कुल जी, पीक आवर्स में शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल का हिस्सा बन चुका है और आज भी शहर की छोटी बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इस वक्त मुतासर है। अहम शाहराहों के हवाले से अगर बात करें तो शाहरा फैसल नर्सरी से डिग रोड जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, जबकि NM जनरल रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। राशिद मिन्नाज रोड के दोनों ट्रैक पर भी ट्रैफिक की रवानी इस वक्त मुतासर दिखाई देती है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। दीगर शाहराहों के हवाले से बात करें तो हसन स्क्वायर, लसबेरा, गुरु मंदिर और अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर दिखाई देती है। तारिक रोड, बहादराबाद, हसन स्क्वायर और दीगर मकामात पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, जबकि सिंगर चौरंगी से शाह फैसल जाने वाली शाहराह पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शाइन कॉम्प्लेक्स के अतराफ में भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। दीगर छोटी बड़ी शाहराहों पर भी इस वक्त ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि कुछ शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद दिखाई देते हैं, जबकि कुछ शाहराहों पर मौजूद है। इस वक्त फिरोजाबाद ट्रैफिक सेक्शन के करीब हम मौजूद हैं और यहाँ पर शाहरा कायदीन से आकर शाहरा फैसल मिलने वाली शाहरा के मकाम पर मौजूद है और यहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है जो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि कुछ शाहराहों जिनमें MA जनरल रोड और दीगर ऐसे शाहरा जिन पर ट्रैफिक सिग्नल्स भी मौजूद नहीं है और जहाँ मौजूद है वो गैर फाल है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार न होने से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना रहता है, जिससे मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो जाता है। और कुछ शाहराहों पर जिस तरह अगर शाहरा फैसल की बात करें तो सिग्नल फ्री होने के बावजूद यहाँ पर हमें ट्रैफिक का दबाव देखने में आ रहा है। जी, मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, दिसंबर 24 में सीमेंट की बरामदात 49.35% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। दिसंबर 24 में सीमेंट की बरामदात 7 लाख टन से ज़ायद रिकॉर्ड की गई हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा अशरफ। जी, देखा जाए मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि दिसंबर 24 में सीमेंट की बरामदात जो है तकरीबन 50% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर 24 में सीमेंट की बरामदात 7,83,550 टन की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है, जो कि देखा जाए दिसंबर 2023 के दौरान 5,24,000 टन सीमेंट जो है बरामद हुई थी। दिसंबर 24 के दौरान सीमेंट की मुकामी खपत में 4.76% कमी हुई है और पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने जो आदत शुमार जारी किए हैं जिसमें बताया कि मजमूई फरोख्त दिसंबर में जो है 35,70,000 टन रही है और जिसमें देखा जाए मजमूई तौर पर दिसंबर यानी कि 2023 की फरोख्त जो है 35,40,000 टन के मुकाबले में तकरीबन 5% कम रही है। और मजमूई तौर पर देखा जाए यहाँ पे रवा माली साल पहले 6 माह के दौरान सीमेंट की मजमूई फरोख्त 2,29,35,000 टन रही है। पिछले माली साल के इसी अरसे में यानी 6 माह में जो है 2,38,81,000 टन के मुकाबले में तकरीबन 4% कमी हुई है। इस अरसे के दौरान मुकामी फरोख्त 1,81,00,000 टन रही है। जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची ट्रैफिक पुलिस शहरियों की खिदमत में पेश है। स्टार गेट के करीब खातून की मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया, जिस पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने पेट्रोल मंगवाकर खातून बाइकर की बाइक में डाला। शाहराह फैसल पर स्टार गेट के करीब खातून की मोटरसाइकिल बंद हो गई। खातून ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार से मदद तलब कर ली। ट्रैफिक एहलकार ने मोटरसाइकिल को चेक किया तो पता चला कि पेट्रोल खत्म हो चुका है, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने खातून को पेट्रोल ला कर दिया और मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के बाद खातून को रवाना किया गया। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि किसी भी नागाहानी सूरत हाल में 1915 पर राबता करें। और कराची में रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी सरगर्मियां भी बुरी तरह से मुतासर हैं। शहर में धरनों की वजह से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। कायम मुकाम
रजिस्ट्रार के मुताबिक 2 और 3 जनवरी को कराची के दोनों कैंपसेस में होने वाले इम्तिहानात मुलतवी किए गए हैं। ये फैसला तलबा की मुश्किलात और ट्रैफिक मसाइल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, ताकि इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचने में पेश आने वाली दुश्वारियों से बचा जा सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान में भी मसनूई ज़हानत की तालीम फ़रोग़ पाने लगी। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ने 4 साला मसनूई ज़हानत डिग्री कोर्स मुतारिफ करा दिया। AI इन हेल्थ, AI इन कंस्ट्रक्शन समेत दीगर कैटेगरीज शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो कि इस वक्त वाइस चांसलर सलीम हबीब यूनिवर्सिटी डॉक्टर इरफान हैदर के साथ मौजूद हैं। आज बिल्कुल देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आज कल हमारे लिए बहुत ही नागुज़ीर हो गई है और जदीद दुनिया के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल है। तो जामिया कराची के बाद प्राइवेट सेक्टर में सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 4 साला डिग्री प्रोग्राम जो है वो मुतारिफ करवा दिया है। इस वक्त वाइस चांसलर सलीम हबीब यूनिवर्सिटी इरफान हैदर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। देखिए, AI जो है उसने बहुत सारी जो डिफरेंट डिसिप्लिन थे उनको यकजा कर दिया है। यानी कि AI इन हेल्थ है, AI इन मेडिसिन है, AI इन एग्रीकल्चर है, AI इन लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है, AI इन ब्रीडिंग है, AI इन बायोमेडिकल डिवाइसेस है, AI इन इंजीनियरिंग है, AI इन कंप्यूटर साइंस है। ये बहुत सारे एरियाज़ हैं। तो AI की मुख्तलिफ जो जहतें हैं उनको किस तरह से यकजा किया जाता है और ऐसे लोग बनाए जाएं जो पहले दूसरे साल से ही एजुकेशन के अंदर दे आर एबल टू अर्न एंड सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज़। तो ऐसा प्रोग्राम हम मुतारिफ करा रहे हैं और हमारा ये ख्याल है कि इस सिलसिले में हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अनकरीब उसका अनाउंसमेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम सिलिकन वैली और बाहर के दूसरे ममालिक से लोगों को यहाँ बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारे यहाँ जो अवाम में से बहुत सारे लोग जो IT के कोर्स कर रहे हैं किस तरह से वो AI के अंदर अपना फ्यूचर करियर बना सकें। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक जो 4 साला डिग्री प्रोग्राम है वो मुतारिफ करवा रही है, जिसमें दाखिलों का आगाज़ बाकायदा तौर पर किया जा चुका है। जी और नाज़रीन, मेयर कराची का आवाम से किए गए वादे पूरे करने का ऐलान। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक शहर में तरक्याती काम जारी रहेंगे। MQM, PTI और जमात इस्लामी सियासी इख्तिलाफात भुलाकर साथ काम करें। सफारी पार्क में मौजूद हथनियों की सेहत का जायजा लेने के लिए श्रीलंका का डॉक्टर कराची पहुंच चुका है। तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। मेयर कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मुतहर्रिक। लियारी में वाजा अहमद करीम दाद पार्क, मौला मदद पंपिंग स्टेशन और किश्वर शहीद पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, लियारी वालों की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी बातें कम और काम ज्यादा करती है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का सफर जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी बातें कम करती है, काम ज्यादा करती है और बाकी लोग काम नहीं करते, सिर्फ बातें ही करते हैं। तो आज यहाँ पर हमारी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि जो वादे, जो ऐलानात हमारी पार्टी की क़यादत ने लियारी के अवाम के साथ किए हैं, वो वादे तकमील करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक नुमाइंदा अपना किरदार अदा कर रहा है। हथनी सोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल पब्लिक करने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि हथनियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए श्रीलंका की खिदमात हासिल की गई हैं। इस सिलसिले में वेटरनिटी डॉक्टर कराची पहुंच गया। कुछ इश्यूज आए जिसकी वजह से एक और हथनी इंतकाल कर गई, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंशाल्लाह कल हम पब्लिक कर देंगे। पहला डॉक्टर जो है एक्सपर्ट वेटनरी श्रीलंका का, वो कराची आ चुका है और अभी कुछ देर बाद इंशाल्लाह वो सफारी पार्क का विजिट करेगा ताकि वो हथनी की सिचुएशन को, दोनों की सिचुएशन को मॉनिटर कर सके। मेयर कराची का कहना था कि गुज़िश्ता रोज 3.5 अरब की ADP स्कीमों के इश्तिहारात जारी कर दिए गए। आने वाला वक्त इस शहर के लिए बेहतर साबित होगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सर्द मौसम में भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का बहरान बरकरार। कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। अलवासे टाउन के मकीन कहते हैं 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे बिजली मौजूद रहती है। तफसीलात उसामा मलिक की इस रिपोर्ट में। कराची के मकीन सर्दियों में भी बिजली के लिए तरसने लगे। रात हो या दिन बिजली यकसा गायब रहने लगी। कोरंगी अलवासे टाउन के मकीन बिजली के मसाइल से दो चार। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि 24 घंटे में से सिर्फ चंद घंटे ही बिजली आती है। बिजली ना होने से पानी और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिजली हो या ना हो बिल बदस्तूर आ रहे हैं। गुज़िश्ता बरस की निस्बत 70% जायद बिल आ रहे हैं। घर चलाना नामुमकिन हो गया है। टिक के दफ्तर गए, उन्होंने कहा कि उन्होंने करवा रहे हैं काम, तो कोई उसके बाद कोई परेशानी हाई नहीं होता। यहाँ पे ये टाउन है बिल्कुल आवारीसों की तरह जो ना यहाँ पे हम लोग रह गए। जब लाइट नहीं होती तो हमारे ट्यूशन वाले में ना बैटरी है ना, बैटरी से पढ़ते हैं। काफ़ी होती है लेकिन हम लोग जैसे तैसे करके पकड़ लेते हैं। सुबह 8 बजे जिसे बच्चों को ड्रॉप करते हैं, 8:30 बजे घर पे वापस पहुँचते हैं, लाइट मौजूद नहीं होती। बीच में 11 या 11 के बाद 2 मिनट या 3 मिनट के लिए आती है, फिर चली जाती है। अभी वापस लेकर जा रहे हैं, अभी लाइट आई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की फरहमी बिला तात्तुल जारी है। किसी भी इलाके में गैर ऐलान या लोड शेडिंग नहीं हो रही। जिन इलाकों में लोड शेडिंग है वहाँ या तो बिजली चोरी होती है या फिर बिल क्लियर नहीं है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने संगम क्रिकेट ग्राउंड तरक्याती काम शुरू न होने पर शदीद बरहमी का इजहार कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स नवीद अहमद को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने संगम क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया और ग्राउंड में तरक्याती काम शुरू न होने पर शदीद बरहमी का इजहार उनकी जानिब से किया गया। मेयर कराची ने डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स नवीद अहमद को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी किए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जो लोग कराची की तरक्की में रुकावट बनेंगे उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नाजरीन, जेल इंतजामिया फलाही इदारों के साथ मिलकर कैदियों को हुनरमंद शहरी बनाने के लिए पुरअज़्म है। जनरल सिंध प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विस कराची में प्रिजन्स रिफॉर्म्स कमेटी का इनाकाद किया गया। इजलास IG जेल काजी नज़ीर अहमद और CEO लीगल एड सोसाइटी हया अमान जाहिद की सरबराही में मुनक्किद किया गया। जेल में काम करने वाले तमाम NGO से तबादला ख्याल किया गया। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी और कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स की भी शिरकत। कैदियों की टेक्निकल ट्रेनिंग और मुलाजमत देने के लिए जेलों में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। और आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी तेजी देखी गई। हनवर इंडेक्स 111 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,17,119 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। 9.5 पर सरमायाकारों की जानिब से नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 1,17,000 की नई बुलंदियों पर मार्केट में सरमायाकार मुतहर्रिक रहे। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,17,341 की नई बुलंद तरीन सतह कायम की। इससे कबल 17 दिसंबर 2024 को 1,17,039 तक इंडेक्स पहुंचा था। स्टॉक मार्केट माहिरीन के मुताबिक रेकोडिक के 15% शेयर्स सऊदी अरब को देने के हवाले से खबरों के बाइस मार्केट में तेजी रिकॉर्ड की गई। नेक्स्ट वीक में आप देखना फार्मास्यूटिकल में ज़्यादा बेहतरी नजर आएगी, सीमेंट में और स्टील में, क्योंकि OGDC PPA में अभी भी चांसेस है। अगर फॉरेनर बाइंग वगैरह आएंगे 15 जनवरी के बाद, फिर ये आइटम में और ज़्यादा बढ़ेगी। मगर इतनी मार्केट अप होने के बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर कंपलसरी है। यहाँ से 2-5 इंडेक्स माइनस हो भी सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, कल फ्राइडे लास्ट डे वर्किंग डे का भी, इसके बाद मंडे से दोबारा मार्केट स्टार्ट होगी, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी दोबारा नई बाइंग शुरू हो सकती है। आज कारोबार के दौरान 461 कंपनियों के 95 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 46 अरब रुपए से जायद रही। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अयाज राना, सिटी 21। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफा। आलमी मार्केट में सोना $11 महंगा। फी तोला सोने की कीमत 1,100 रुपये और 10 ग्राम की 943 रुपये बढ़ गई। आलमी मार्केट में सोना $11 के इजाफे से $2,635 फी औंस पर पहुंच गया। फी तोला सोना 1,100 रुपये के इजाफे से 2,74,700 रुपये पर जा पहुंचा। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 943 रुपए के इजाफे से 2,35,511 रुपए हो गई। 1 तोला चांदी 3,350 रुपए पर मुस्तहकम रही।